ملوائیں گے پاکستان کی ایسی ہی نامور شخصیات سے۔ دیکھیے پروگرام فیملی ٹوڈے سمیرا مرزا کے ساتھ صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے، میں ہوں سمیرا مرزا۔ میں ہوں طارق حفیظ۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ حکومت پنجاب کا 8 روز کے لیے مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ، مقصد عید کے لیے شاپنگ کے دوران کورونا سے بچنا ہے۔ وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت انسداد کورونا کمیٹی کا اجلاس ایوان وزیر اعلیٰ میں ہوا۔ اجلاس میں مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ ہوا۔ انسداد کورونا کابینہ کمیٹی کا ایوان وزیر اعلیٰ میں وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں عید الاضحیٰ پر کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے مختلف اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ ہم کورونا کو شکست دینے کے قریب ہیں۔ لاک ڈاؤن کا مقصد ہے کہ اب لاپرواہی سے کیسز کی تعداد پھر نہ بڑھ جائے۔ لاک ڈاؤن کے دوران میڈیکل سٹورز، گروسری سٹورز، ٹرانسپورٹ اور دفاتر کھلے رہیں گے۔ اجلاس میں مویشی منڈیوں میں SOPs پر مکمل عمل درآمد نہ کروانے پر وزیر قانون پنجاب نے برہمی کا اظہار کیا۔ راجہ بشارت کا کہنا تھا کہ عید کے بعد NCOC کے اجلاس میں ریسٹورنٹس اور ہوٹلز کھولنے کی سفارش کی جائے گی۔ وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ اگلے بدھ تک مارکیٹس میں سخت لاک ڈاؤن رہے گا۔ عید الفطر والے SOPs کا عید الاضحیٰ پر بھی نفاذ ہوگا۔ مویشی منڈیوں میں سخت قسم کے SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ تھیٹر، ریسٹورنٹ، تفریحی مقامات کھولنے کے لیے محرم کے بعد معاملہ زیر بحث لایا جائے گا۔ لاہور میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن، شہری پریشان، دکانداروں کا کہنا ہے کاروبار پہلے ہی نہیں ہے، لاک ڈاؤن کر کے غلط فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ثنا ارشد کی رپورٹ میں۔ لاہور میں ایک بار پھر لاک ڈاؤن، شہری پریشان ہو گئے، کاروباری حضرات کو حکومت کی طرف سے ایک بار پھر دھچکا لگا۔ پنجاب حکومت نے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کر لیا ہے۔ آج رات 12 بجے تمام بازار اور مارکیٹس بند کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ لاک ڈاؤن کے فیصلے کو تاجر برادری نے مسترد کر دیا۔ جی آج پتہ چلا ہے، صبح ہی پتہ چلا۔ خیر سے یا تو صبح اچھی خبر آنی چاہیے، اور یہ تو خان صاحب جب سے آئے ہیں ماشاءاللہ ہر صبح ایک بری خبر ہی ملتی ہے۔ یہ جتنے بڑے بڑے مگرمچھ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، جب بھی پھنستا غریب بندہ پھنستا ہے۔ ان کو کیوں نہیں فرق پڑتا؟ مگرمچھ ان کے بینکوں میں پیسے اتنے ہوتے ہیں، ان کو منافع اتنے آ رہے ہیں، ان کو ذرا جتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ خیالات ہمارے یہی ہیں کہ نہ ہی کریں، اللہ کرے، کیونکہ یہ دن دہار ہے، ٹھیک ہے، ہاں پر بندہ امید پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ لے کے جائے گا، لیکن اگر یہ لاک ڈاؤن حکومت لگا دیتی ہے تو اس میں تو کافی فرق پڑے گا، دکانداروں کو بھی پڑے گا، جو سیلس مین رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی یہ کافی ڈسٹرب ہوں گے۔ ظاہر ہے جو گھر میں رہنے والے ایک دم سے باؤنڈ ہیں، بچے بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمیں اگر پہلے سے کوئی تھوڑا پتہ ہوتا تو بچے بھی آ کے شاپنگ کر لیتے۔ تو اب بازاروں کی بھی یہ کنڈیشن ہے کہ کرونا کی وجہ سے ہم بچوں کو لے کے نکل بھی نہیں سکتے۔ تاجروں کا کہنا ہے SOPs کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جہاں شہری پریشان ہے تو حکومت کا کہنا ہے عید الفطر پر احتیاط نہیں کی گئی تھی، اس لیے اس بار سخت لاک ڈاؤن کیا جائے گا۔ کیمرہ مین شہباز احمد کے ساتھ ثنا ارشد، ٹی وی ٹوڈے لاہور۔ شہر کے تمام داخلی خارجی راستوں پر پولیسنگ ویب سائٹ کے ذریعے چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اب لاہور کے 6 مقامات کی بجائے 13 مقامات پر سخت چیکنگ کی جائے گی۔ اسی حوالے سے مزید دیکھتے ہیں نمائندہ ٹی وی ٹوڈے شیراز نثار کی رپورٹ۔ CCPO لاہور ذوالفقار حمید کی طرف سے جاری کی گئی پولیسنگ ایپ کے ذریعے لاہور میں 13 مقامات پر چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ پولیس اس ایپ کے ذریعے کس طرح سے چیکنگ کر رہی ہے۔ لاہور کے تمام داخلی خارجی راستوں پر پولیسنگ کے ذریعے سخت چیکنگ شروع کر دی گئی ہے۔ حساس مقامات پر اسپیشل ڈیوٹی کرنے والے پولیس ملازمین کو CCPO لاہور ذوالفقار حمید کی طرف سے جاری کی گئی ویب سائٹ میں شناختی کارڈ کے ذریعے چیکنگ، جرائم پیشہ ملزمان، عدالتی مفروروں سمیت اشتہاریوں اور دہشت گردی میں ملوث افراد کی شناخت کا ریکارڈ موجود ہے۔ افغانستان سے تربیت حاصل کرنے والے افراد کا بھی اس ویب سائٹ میں ریکارڈ شامل ہے۔ چند ہفتوں کے دوران پولیسنگ کے ذریعے 21 اشتہاریوں سمیت 41 جرائم پیشہ افراد کو ان داخلی خارجی
खारजी रास्तों से गुजरते हुए हिरासत में लिया गया है। इस हवाले से CCP लाहौर जुल्फकार हमीद और DIG ऑपरेशन इशफाक खान का कहना है कि ई पुलिसिंग के जरिए जराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग करने में आसानी होगी। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर चेकिंग 6 मुकामात से बढ़ाकर 13 कर दी गई है। ई पुलिसिंग वेबसाइट में मौजूद रिकॉर्ड पुलिस एहलकार लैपटॉप और मोबाइल के जरिए बआसानी चेक कर सकेंगे। ई पुलिसिंग के जरिए लाहौर में रोजाना की बुनियाद पर हजारों गाड़ियां चेक की जा रही हैं। गुज़िश्ता रोज ठोकर न्याज बेग पर 3 इश्तहारियों को पकड़ा गया और इसी ऐप के जरिए 13 मुकामात पर चेकिंग की जा रही है, जो कि बहुत ही खुशाइंद बात है। कैमरामैन नईम अहमद के साथ शिराज निसार, TV टुडे लाहौर। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि मुहर्रम और ईद पर एहतियात न की तो कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल न किया तो बुजुर्गों और बच्चों की जिंदगी को खतरे में डालेंगे। हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाया ताकि लोगों का कारोबार चलता रहे। अगर मुकम्मल लॉकडाउन लगाते तो गरीब लोग भूखे मर जाते, अमीर लोगों को लॉकडाउन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ईद पे एहतियात कर ली तो इंशाल्लाह, और हम समझ रहे हैं कि मुहर्रम में भी हम उलमा से सबसे कह रहे हैं कि मुहर्रम में इसमें एहतियात कर लें, क्योंकि उसके बाद बाकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। और ये सारा जो सेक्टर है टूरिज़म का, ये रेस्टोरेंट्स का, इस सब को फिर हमें मौका मिलेगा कि ये अपना कारोबार शुरू करें। और फिर हमारे लिए इस मुल्क की अहमियत, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल, हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स, हमने अपनी यूनिवर्सिटीज़ खोलनी है, अपने कॉलेजेस, अपने स्कूल्स खोलने हैं, तो वो भी अगर अच्छे रिजल्ट्स आ गए इस ईद के बाद और इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद, तो फिर हम वो स्कूल कॉलेजेस का भी सारा फिर रिव्यू करेंगे SOPs के साथ। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप इस अल्लाह ने जो हमें एक बड़ी मुश्किल वक्त से बचाया है, मुझे ये उम्मीद है कि आप इसकी कदर करेंगे, अल्लाह का शुक्र करेंगे और आप पूरी तरह ईद पे और मुहर्रम में पूरी तरह एहतियात करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का बड़ा फैसला करते हुए शुगर कमीशन रिपोर्ट पर FBR, NAB, SCCP, FIA को तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मुशीर एहतसाब व दाखिला शहजाद अकबर ने खतूत अरसाल किए। गवर्नर, स्टेट बैंक, मुसाबकती कमीशन और 3 सूबों को भी खत लिख दिए गए। खतूत के साथ शुगर कमीशन रिपोर्ट भी भिजवा दी गई। वफाकी हुकूमत ने 90 रोज में अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का कह दिया। वफाकी काबीना ने 23 जून को एक्शन प्लान की मंजूरी दी थी। FBR को मुल्क भर की तमाम शुगर मिल्स का ऑडिट करने की भी हिदायत कर दी गई। खत के मतन में कहा गया कि FBR शुगर मिल्स की बेनामी ट्रांजैक्शंस की तहकीकात करे। NAB शुगर कमीशन के नताइज की रोशनी में जिम्मेदारान का तयन करे। NAB को शुगर मिल्स और मालिकान के माली मामलात की तहकीकात का कह दिया गया है। ईद उल अजहा के करीब आते ही सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा हो गया। शहरी परेशान है, मुनाफाखोर मनपसंद कीमतें वसूल करने लगे हैं। देखते हैं अली तारिक की रिपोर्ट। ईद उल अजहा के करीब आते ही पकवानों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। लाहौर में अदरक 440, लीमू 150 से 180 रुपए किलो में फरोख्त होने लगा। गोश्त में स्पेशल इस्तेमाल होने वाला टमाटर भी 80 से 110 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। हाँ जी, ये जब ईद आती है ना, ऐसा भी कोई भी त्यौहार हमारे मुल्क में, तो सबसे पहले ये है कि जो माफिया है वो सरगर्म होता है और हुकूमत का बेरागर्क भी होता है। उसकी वजह ये है कि पहले प्याज आपके सामने, प्याज और टमाटर 30 रुपए किलो थे। जैसे ईद के दिन करीब आ रहे हैं, टमाटर 100 रुपए किलो हो गए हैं और अदरक और ये लहसुन वगैरह ये 400 तक चले गए हैं। शहरी भी महंगाई से तंग नजर आते हैं। कहते हैं कि हर त्योहार पर मुनाफाखोर कीमतों में इजाफा कर देते हैं। वजीर आजम कुछ नहीं कर रहे, हुकूमत को घर जाना चाहिए। तकरीबन जितने साल भी हैं, हर साल ही ऐसी होता, तो ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए ना कि इस पे काबू करे। पहले चले होता था वो कुछ अफोर्ड कर लेते होते थे, ठीक है। ये अब बकरा ईद भी आ गई, इन्होंने सबने रेट बढ़ा दिए अपने अपने। हर त्योहार महंगाई क्या, ये तो हर दिन ऐसा हो रहा है। हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो खाने पीने के लिए भी तंग है, समझ लें। इंतजामिया भी सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम नजर आती है। सब्जियां भी शहरियों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सब्जियां और मसाला जात की कीमतों को कंट्रोल किया जाए और मुनाफाखोरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। ईद उल अजहा के आते ही सब्जियों की कीमतें फिर आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि वजीर आज़म इमरान खान ने महंगाई कम करने के वादे वफा नहीं किए। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, TV टुडे लाहौर। कराची में मानसून का तीसरा स्पेल, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और तेज बारिश। औरंगी टाउन डूब गया, शहरियों का कोई पुरसाने हाल नहीं।
बल्दिया स्पाको रोड पर फैक्ट्री में करंट लगने से मजीद 3 अफराद जाँ बहक हो गए। गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ नाजिमाबाद, कलंदरिया बफर जोन, बल्दिया टाउन, पावर हाउस चौरंगी, औरंगी टाउन और हैदरी में भी वक्फे वक्फे से बादलों की गरज चमक के साथ हल्की और तेज बारिश हुई। फेडरल बी एरिया में आयशा मंजिल और इतराफ के इलाकों में बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है, जबकि रिहायशी इलाकों की गलियों में 3 से 4 फीट पानी जमा हो गया है। बल्दिया स्पाको रोड पर फैक्ट्री में करंट लगने से 3 अफराद जाम बहक हुए हैं। शहर में बारिश के बाद सड़कें और गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी हैं। मीट कॉम्प्लेक्स जौहर में अब तक 8.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल ने दावा किया है कि शहर कायद को 3 माह के लिए उनके हवाले कर दिया जाए, साफ हो जाएगा। जी हां, मुस्तफा कमाल ने अपने एक बयान में सियासी मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए कहा है कि उनको पता था कि मैं ये काम कर लूंगा, इसलिए वो मेरी बात से पीछे हट गए। मौजूदा मेयर कराची गलत बात करते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं। वज़ीर आज़म कराची आते हैं तो वज़ीर आला सिंध से मुलाकात ही नहीं करते। जब वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात नहीं करेंगे तो उनको आज़ादी मिल जाती है। वज़ीर आज़म को चाहिए कि वो कराची के मसाइल पर उनके साथ बात करें। कराची में 32 साल से लोगों ने पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। कराची की बारिश के बाद हालत जार पर वसीम अकरम भी खामोश न रह सके। कहते हैं बारिश में डूबे कराची की वीडियोज और मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू होता है। कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल पर कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम फट पड़े। कहा, कराची को एक बार फिर डूबा देखने पर कोई हैरत नहीं हुई। क्या बारिश में डूबे कराची की ये हालत हमें नींद से जगाने की घंटी है? वसीम अकरम ने कहा कि बारिश में डूबे कराची की वीडियोज और मुतासरीन की बेचारगी देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। कराची में नकासी ये आब हल तलब मसला है। हमें अपने खूबसूरत शहर को दोबारा ठीक करना होगा। सिंध के वजीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह की साबिक कप्तान वसीम अकरम को कराची का दौरा करने की दावत। कहा, अपने पड़ोसी वसीम अकरम को दावत देता हूं कि वो मेरे साथ शहर का दौरा करें। साबिक कप्तान वसीम अकरम के ट्वीट के जवाब में सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह भी मैदान में उतर आए और कहा, वसीम अकरम कराची की सड़कों का जायजा लें और देखें किस तरह पानी का निकास किया गया है। वसीम अकरम, अगर आप मुखलिस हैं तो शहर का दौरा जरूर करें और अगर आपने सुनी सुनाई बातों पर बयान दिया है तो आपसे ज्यादा गैर जिम्मेदार कोई नहीं है। वसीम अकरम के गैर जिम्मेदाराना बयान ने अवाम को मायूस किया है। बारिश में डूबते कराची को देखकर पीटीआई क़यादत ने हुकूमत सिंध को आड़े हाथों लिया। विफाकी वज़रा ने सोशल मीडिया पर बयानात की भरमार कर दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि कराची डूबा हुआ है और नीरू अपनी सालगिरह मना रहा है। पीपल्स पार्टी तीसरी बार इक़्तिदार में लाने वाले वोटर्स से इंतकाम ले रही है। विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी ने कहा कि 12 साल से ज़ायद अरसे से इक़्तिदार में रहने वाली पीपल्स पार्टी कराची के बरसाती नालों और गटर की सफाई का इंतजाम नहीं कर पाई। अली ज़ैदी ने यह भी कहा कि सियासतदान होने का एक ढोंग रचाने वाला एक बिगड़ा लाडला टीवी पर बैठकर हर किसी को हर बुराई का जिम्मेदार ठहराता है। ये मुजरिमाना गफलत की इंतहा है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना था कि कराची के शहरियों को अपने प्यारों की लाशें निकालते देखकर दिल गमज़दा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली का फैसला कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने नैब के सजा याफ्ता सरकारी अफसर की मुलाजमत पर बहाली से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया। अदालत में समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल सुहेल महमूद ने कहा कि तारिक अतीक सिद्दीकी टेलीफोन इंडस्ट्रीज में डिप्टी जनरल मैनेजर था। गैर कानूनी ठेका देने के इल्जाम में 5 साल कैद बामुशक्कत और 50 लाख रुपए जुर्माना हुआ। ताहिर अतीक को सजा होने